Good morning, students. Welcome to our class. Now here we'll go ahead with the blood vessels. Last time we have seen the circulatory system of the human body, that is transportation system, working of heart, that how it pumping, right, and circulation blood का कैसे होता है, that we have seen. Now main organ of the circulatory system or the transportation system is heart, then arteries, veins, capillaries and blood. So that the main organ heart है. We have seen the function of heart, how it works, the structure of heart in the last lecture. Now the another organ is arteries and veins. These arteries and veins are called the blood vessels. So in our body, two types of blood vessel is there, that is arteries and veins. Now already we have discussed, but we will go through it thoroughly in detail. What is the structure and function of the blood vessels? 2 marks या 3 marks के question में blood vessels के questions आते हैं. So we will go through it in detail. So first of all, arteries are the tube. Arteries are the vessels which carry the blood away from heart to various organs of the body. We have seen that कि हार्ट से मेन आर्टरीज जो निकलती है, that is called the aorta, right? And that aorta is divided into two parts which carry the blood from heart to the upper and lower body of our lower portion of our body. So what is the function of artery? It carries the oxygenated blood from heart to the whole part of our body, and therefore pumping होता है heart से with pressure. That means the artery में blood का pressure बहुत high होता है, right? Which we call blood pressure, जिसे हम blood pressure बोलते हैं. So heart pump करता है pressure से. That means artery में जो blood जाता है, that is also with the high pressure. वो भी कैसे होता है? High pressure से. And therefore blood emerges, that is pumping, go out from heart under the high pressure. Therefore the arteries have thick elastic wall. अगर wall thin हुई तो blood pressure से या heart के pumping से वो damage हो जाएगी, वो फट जाएगी. And therefore first thing oxygenated blood है, that is very important. Second thing कि उसमें कोई valve नहीं है. And third, it is a thick elastic wall है, thick elastic wall है. And therefore whenever the blood flow through it, it is not damaged because of the high pressure. Now these arteries are not here on the surface of our body, but it is under the body के inner portion में होगी, that we cannot see. जो हमें दिखती है वो सब क्या है? It is a veins. Arteries we cannot see. Arteries में oxygenated blood है और valve नहीं है. अगर arteries कट गई तो पूरा body का blood बाहर निकल जाएगा. And therefore for our protection the arteries are in the inner part of the body. वो यहाँ surface पे नहीं होती है. Arteries looks red in color क्योंकि उसमें oxygenated blood है. While veins are the blood vessels which collect the blood from different organs and bring it back to the heart. हमने जब वहाँ पे function देखा था last time, I have told you that from whole part of the body, each and every cell से capillaries blood collect करके veins बनाती है और veins को दे देती है. That from the inner portion and from the upper portion and from the lower portion एक एक vein आती है, that मिल के vena cava बन जाती है. That vena cava put the blood, fill the blood into the heart. So for the whole over the body, blood carries, that is deoxygenated blood, जो oxygen use हो गया in the respiration and all metabolism. तो after that oxygenated blood उसमें use हुआ cell में, oxygen use हो गया and carbon dioxide mix हो गया, produce हो गया. that carbon dioxide वाला जो blood है,
जो हार्मफुल सब्सटेंस वाला ब्लड है वो, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इज फ्रॉम द कैपिलरीज टू वेन्स टू वेना कावा से लेके होल ओवर द बॉडी पार्ट से हार्ट में आ जाता है. दैट मीन्स आर्टरीज का फंक्शन है फ्रॉम द हार्ट टू द होल बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करना, while vein का फंक्शन है from the all over the body deoxygenated blood collect करके heart को दे देना. That is the first difference in arteries and veins. Veins जो है, another thing is that contains valves that ensure that the blood flows only in one direction. अब नीचे के पोर्शन से ब्लड हार्ट तक लाना, that is in the opposite direction of the gravitation. वो डायरेक्शन अपोजिट हो गए. तो ऐसे ही अगर आप पाइप लेके खड़े होंगे तो पानी ऊपर नहीं जाएगा. Whether you have to shuck it or you have to push it, right? That means ऐसा कुछ होना चाहिए जो अपोजिट ग्रेविटेशन में फोर्स में जाए. So वैसे कैसे होगा? How it will be? तो veins contains the valve. जब प्रेशर होता है तो वाल्व ऊपर, जब ब्लड आया वाल्व बंद हो जाएगा. दैट मीन्स वो ब्लड वापस नीचे नहीं जा सकता. व्हेन यहां से ब्लड ये वाल्व को टच करेगा, वाल्व ओपन, ब्लड ऊपर गया, वाल्व क्लोज. दैट मीन्स द वाल्व एंश्योर दैट कि ब्लड जो है वो वन वे ट्रैफिक हो जाए, वापस न जा पाए. राइट? सो दैट वेन्स कंटेन्स ओनली वाल्व्स. आर्टरीज को तो हार्ट से नीचे के पोर्शन में ब्लड ले जाना है. इट इज इन द डायरेक्शन एंड ऑल्सो द हार्ट का उसके पास प्रेशर भी है, आर्टरी के पास, तो एक ही पंपिंग करता है एंड देयरफॉर प्रेशर से वो ब्लड नीचे चला जाएगा. आर्टरीज डू नॉट हैव वाल्व्स, वेन हैव द वाल्व्स. आर्टरीज की वॉल थिक एंड इलास्टिक है, while veins have the thin wall. Right? That is the third difference of vein and artery. Veins are on the surface below the skin, while the arteries are in the inner portion of our body. वो ऊपर नहीं दिखती है. Arteries are reddish brown in color, while here veins are greenish color, because greenish blue जैसा color होगा. Why? Because this is deoxygenated blood है, right? और इसीलिए उसका color दिखता है greenish जैसा. Right? Okay. So these are the difference between the arteries and veins. Sometimes that 2 marks question में explain the blood vessels, ऐसा question आता है, explain the function of the blood vessels, while sometimes the difference between the arteries and veins ऐसा भी होता है. So this is the main difference between the vein and arteries. Another thing is that the arteries divided in smaller vessels to bring the blood in individual cell. मैंने आपको बताया था that cells are nano structure. Nano मतलब क्या? That we cannot see with the naked eyes. Micro है, right? Cell को observe किसमें किया जाता है? That is microscope. That means the cell इतना माइक्रो है कि उसमें वेन या तो आर्टरी उसमें जा ही नहीं सकती. उस तक पहुंचने के लिए the veins and arteries क्या हो जाती है? Further divided into the small hair-like structure is there, and that hair-like structure, the vessels which is the smallest vessels, is called capillaries. And that पहले क्या होगा? Aorta divided into arteries divided into capillaries, right? That capillaries reaches to the cell. Cell में वो ऑक्सीजन देगी. That ऑक्सीजन की वजह से cellular respiration होगा. After the cellular respiration, carbon dioxide produce होगा. That carbon dioxide वाला blood again outside the cell जाएगा, फिर से capillaries में. एक कैपिलरी सेल है तो एक कैपिलरीज अंदर एंटर होती है, दूसरी कैपिलरीज बाहर आती है. जो अंदर एंटर हुई वो आर्टरीज वाली सेल कैपिलरी है जो ऑक्सीजन लेके आती है. जो बाहर जाती कैपिलरीज है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है. सो ईच एंड एवरी सेल से जो कैपिलरीज बाहर आएगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली होगी. वो कैपिलरीज आगे ज्वाइंट होके वेन बन जाएगी. ऑल पार्ट में से जितनी भी वेन आई वो आगे जाके वेना कावा बन जाएगी और वेना कावा गोज टू द हार्ट. दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट वेसल्स, द नैरो वेसल्स, द हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसी जो वेसल्स है
that is called the capillaries which bring blood in the cell. सेल में अंदर जाने के लिए thin portion बन जाता है and that is called the capillaries. Capillaries join together to form the veins. Arteries से capillaries divide होती है, capillaries joint होके vein बन जाती है. So इधर से blood आया, सेल को दिया, रेस्पिरेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस जाती हुई कैपिलरीज अगेन कन्वर्टेड इनटू द वेन्स एंड गो बैक टू द हार्ट. दिस इज ऑल अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल. दैट इज व्हाट? फर्स्ट इज आर्टरी, सेकेंड इज वेन, थर्ड इज कैपिलरीज. नाउ और भी कोई स्ट्रक्चर है जो ब्लड के फंक्शन में हेल्प करता है. That is the another two thing which is the cells of the blood. You know that कि blood में कौन कौन से cells है? One that is RBC, another that is WBC, third is the platelets. Now RBC, that is red blood cell. It contains hemoglobin. हमारे red blood cell, blood red क्यों है? Why? Because of the hemoglobin. नाउ दिस हीमोग्लोबिन कहाँ पे है? तो वो है रेड ब्लड सेल. अगर रेड ब्लड सेल निकाल लिए जाए तो ब्लड कलरलेस हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड दैट? दैट मीन्स आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन होता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन ट्रैप इज एक्स्ट्रा एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. And therefore it absorbs the oxygen from the lungs and give it to the whole part of the body and trap the carbon dioxide and give it to the lungs. That is the oxygen and carbon dioxide का transportation करने के लिए who is responsible? Hemoglobin. And where is hemoglobin? That is on RBC. So ट्रांसपोर्टेशन में किसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्लड इसका फंक्शन क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन का. व्हाट इज द फंक्शन? किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का. अनदर थिंग द डाइजेस्टेड फूड का, राइट. एंड थर्ड थिंग द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का. एक्सक्रीटरी मतलब हार्मफुल सब्सटेंस दैट हैज टू बी रिमूव फ्रॉम अवर बॉडी, उसका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करेगा? आरबीसी, दैट इज द रेड ब्लड सेल. फिर अनदर टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी, इन द ब्लड, दैट इज कॉल्ड द डब्ल्यूबीसी, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल. व्हाइट ब्लड सेल हमारी इम्यून सिस्टम है. इम्यून सिस्टम दैट मीन्स दे आर अवर सोल्जर्स. दे फाइट अगेंस्ट द डिसीज जो हमें बीमार होने से बचाता है. सो दैट द डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? टू इम्यून सिस्टम, दैट इज दैट प्रोटेक्ट अस टू बी सिक, दे प्रोटेक्ट अस टू फॉल इल, राइट. दैट इज अवर प्रोटेक्टर. दैट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी. अगर डब्ल्यूबीसी कम हो गए तो दैट अवर इम्यूनिटी कम हो जाएगी, राइट. और हमें कोई भी डिसीज इजीली हो जाएगा. अगर आरबीसी कम हो गए दैट हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा. यू नो दैट पर्सन हु हैज द लेस आरबीसी दैट हैव द लेस हीमोग्लोबिन. और लेस हीमोग्लोबिन है तो उसे क्या बोलते हैं? दैट पर्सन इज एनीमिक पर्सन, दैट इज एनीमिया हो गया. एंड व्हाट इज इट? दैट इज द खून की कमी हो जाना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, राइट. एंड दैट फील्स द एनर्जी लेस, वीकनेस आ जाती है, then laziness आ जाता है. That is all called the anemic person, right? Okay. And the third set that cells present in the blood is platelets. Platelets circulates around the body and plug the leak by clotting the blood at the point of injury. The main function जो है वो platelets का है. कभी आपने ऐसा देखा है कि अगर आपको कुछ यहाँ पे इंजरी हो गई, कुछ कट हो गया, कुछ लग गया, घाव हो गया, और आप जब ब्लड बाहर आता है तो आप इसे दबा दोगे. आफ्टर सम टाइम इट क्लोज, राइट, स्टॉप हो जाएगा. पर अगर आपने कुछ नहीं किया, ब्लड को ऐसे ही रहने दो, निकलने दो. अगर छोटा सा कट है, कितना ब्लड बाहर आएगा? हैव यू ऑब्जर्व्ड एवर? नो, क्योंकि हम घबरा जाते हैं, अब हमें ब्लड निकला और हाथ से दबा देते हैं. अगर आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी ब्लड अपने आप स्टॉप हो जाता ही है. Why? Because of this platelets. Platelets का जो फंक्शन है that is the clotting करना.
क्लॉटिंग करना, मगर जब भी आपको इंजरी हुई, अगर आपकी बॉडी पे कुछ भी ऐसे कट या घाव लग गया जिसमें से ब्लड बाहर आ रहा है, देन बाहर एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो whenever this platelets, जो प्लेटलेट्स है वो ऐसे फंक्शन, ऐसे सेल है, राइट, और ये जो है सिंगल वॉल्ड है, और whenever it is connected to the, whenever it is come in the contact with the oxygen, then उसकी जो वॉल है वो फट जाएगी और वो ऐसे हो जाएंगे like this, राइट, मतलब कि फाइबर जैसे, राइट। तो वो जो फाइबर है उसे हम फाइब्रिनोजन बोलते हैं। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट हाउ इट वर्क्स वो मैं आपको बताती हूँ। दैट मीन्स ये जब वॉल टूटेगी तो वो फाइबर्स बन जाएंगे, और वो जो फाइबर्स है वो हमारे घाव के ऊपर ऐसे आ जाएंगे लाइक दिस, ऐसी नेट बन जाएगी, और ऐसी नेट बनते बनते इतनी स्मॉल नेट बन जाती है कि जो ब्लड के सेल्स है वो बाहर नहीं आ पाएंगे, धीरे धीरे यहाँ पे जमने लगेंगे लाइक दिस, ऐसी नेट क्लॉटिंग होगी। अब जब उसमें से ब्लड बाहर नहीं आ सकता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे जम जाता है। आप अगर ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर के बाद वो जम जाएगा, दैट इज कॉल्ड द क्लॉटिंग, और बाहर ब्लड नहीं आने देगा। दैट मीन्स अगर आर्टरीज में, वेन्स में भी कभी कुछ डैमेज हुआ तो वो प्लेटलेट्स क्या करेगा, तो जब हमारे बॉडी में भी आरबीसी ट्रैप द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेता है, तब वो जब वेन या उसमें से भी लीकेज हुआ तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर वो क्लॉटिंग कर देगा, तो वो वेन्स या आर्टरीज को भी बंद कर देगा, लीकेज नहीं होने देगा, राइट। दैट मीन्स प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, इट क्लॉट द ब्लड and prevent the leakage of the blood at the point of injury। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, सीरियस इंजरी हो गई, बहुत बड़ा सा घाव हो गया, तब क्लॉटिंग मुश्किल हो जाएगी। अगर छोटे छोटे घाव है, छोटे छोटे वुंड है, देन व्हाट हैपन, इट इज क्लॉटेड, ब्लड क्लॉट हो जाता है, राइट। Okay, and therefore this is the main function of the platelets, that clotting of blood and stop the leakage at the point of injury. Then another one more important thing that help the blood को help करने के लिए, transportation में help करने के लिए, one more fluid, one more liquid is present in our body, and that is called the lymph। यू नो दैट कि ये जो लिम्फ है वो कलरलेस है। अब कभी कभी ऐसा होगा, अगर आपने ऐसा देखा है कि कहीं पे जाते वक्त किसी चीज से ऐसे टकराए और ऐसे कुछ घिस गया, नीचे गिर, तो कभी सिर्फ ये ऊपर की स्किन निकल जाती है, राइट। और बब क्या होगा, ब्लड नहीं निकलेगा, बट सम लिक्विड जैसा, पानी जैसा आ जाएगा, ड्रॉप 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 ऊपर, दैट इज द लिम्फ। ब्लड क्यों नहीं निकला, क्योंकि कोई भी वेन कट नहीं हुई है। जब घाव लग जाता है, वुंड हो जाता है, जब कट होता है तब ब्लड बाहर आता है, बिकॉज इट इज द लीकेज ऑफ वेन कट हुई है। पर जब ऐसे ही छिल जाता है, तब कोई वेन अगर कट नहीं होती तो ब्लड बाहर नहीं आएगा, तब क्या बाहर आता है, लिम्फ, दैट इज सम वाटरी लिक्विड इज देयर, राइट। तो दैट इज व्हाट, through the pores present in the wall of capillaries, capillaries की wall जो है porous है, right? तो that pores के अंदर से some amount of plasma is what? It is a liquid of part of the blood, right? Protein and blood cells escape in the intercellular space। हमारी बॉडी के जो भी सेल्स है like this, तो दिस ऑल आर कॉल्ड द इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये जो है ब्लैक डॉटेड, दिस इज इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस में ये प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स, नॉट द आरबीसी, आरबीसी नहीं आएगा, राइट, ओके। ये सारा जो है वो यहाँ कैपिलरीज में से, कभी कभी वॉल में से यहाँ बाहर आ जाएगा इंटरसेल्यूलर स्पेस में, एंड दैट इज कॉल्ड द लिम्फ। क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं है तो उसमें हीमोग्लोबिन नहीं आएगा, एंड देयरफॉर इट इज कलरलेस, उसमें कलर नहीं है। सो हियर लिम्फ्स आर कलरलेस एंड हैव लेस प्रोटीन, ब्लड की कंपैरिजन में उसमें लेस प्रोटीन है,
and hemoglobin is not present because RBC नहीं है, so it is colorless. Lymph drain into the, अभी जो lymph है that is a colorless pale yellow जैसा थोड़ा सा ऐसा एक लिक्विड है जो ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. क्या हेल्प करता है? तो ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, और ये इंटरसेल्युलर स्पेस में से ये जो कलरलेस लिक्विड है वो कहाँ चला जाएगा? इट इज इन द लिम्फेटिक कैपिलरीज. वो कहाँ चला जाएगा? कैपिलरीज में. जो वेन्स की कैपिलरीज है, ब्लड आर्टरीज की कैपिलरीज है, उसमें ब्लड होता है. ये जो कैपिलरीज है कहाँ होगी? यहाँ इंटरसेल्युलर स्पेस में. उसमें क्या होगा? कलरलेस लिक्विड कॉल्ड लिम्फ. वो ऐसी कैपिलरीज में फ्लो होता है. एंड फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेस में, कैपिलरीज मतलब स्मॉल हेयर लाइक ट्यूब्स, जिसमें ये लिम्फ जाएगा. वो सारी कैपिलरीज आगे जाके लिम्फ वेसल्स बनाएगी, जैसे वेन में रहती है और फिर वेन में ओपन होती है. दैट मीन्स पहले इंटरसेल्युलर स्पेस में से कैपिलरीज में से वेन्स में जॉइंट हो जाती है. ये आया कहां से? ब्लड में से ही. सपोज कि ये ब्लड वेसल है. हियर इज दैट, हियर इज द ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज है. तो उसकी वॉल में से यहां से जो प्लाज्मा प्रोटीन एंड सम ब्लड सेल्स बाहर पोर्स में से बाहर आ जाते हैं, और वो कहाँ जाएंगे? यहाँ इंटरसेल्युलर स्पेस में. वहां से कहाँ जाएगा? लिम्फेटिक कैपिलरीज, फिर लिम्फेटिक वेसल्स, एंड फिर वहां से वेन्स में मिल जाती है. तो जो इंटरसेल्युलर स्पेस में एक्स्ट्रा वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर, फ्लूइड या कुछ भी फैट या जरूरी मटेरियल जो बाहर सेल के बाहर है, उसे वो लेके ब्लड को दे देता है. दैट मीन्स जो सेल के बाहर कुछ फैट चली गई या कुछ जरूरी मटेरियल, जो नेसेसरी एक्स्ट्रा वाटर, वो सब जो सेल्स के स्पेस में चला गया है, मोलेक्युलर जैसे इंटरसेल्युलर स्पेस में, तो वहां से लेके लिम्फ क्या करेगा? ये बैक इनटू द ब्लड, वो ब्लड में दे देगा. क्यों? क्योंकि जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो लास्ट में कहाँ जाती है? वेन में ही खुलती है. तो सारा जो मटेरियल है वो यहाँ सेल्यूलर स्पेस में पड़ा है, वहां से लेके ब्लड को दे देने का काम लिम्फ करता है. लिम्फ इज व्हाट? कलरलेस लिक्विड, एंड दैट कलरलेस लिक्विड इज लेस प्रोटीन, नो हीमोग्लोबिन, बट जस्ट लाइक द ब्लड. बाकी का सारा ब्लड जैसा ही है, विच हेल्प द ब्लड इन द ट्रांसपोर्टेशन. राइट? Okay, so this is all about the helping organs or helping substance of the transportation, human transportation system, right? Okay, so हमने अब तक जो देखा वो ह्यूमन के अंदर था, ह्यूमन बीइंग की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थी. Now we'll move ahead with the transportation in plants. प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ और क्या होता है? So root absorb the water and dissolve mineral and give it to the whole body part of the plant, while the leaves perform the photosynthesis, produce the food and give it to the whole body part. तो you know that कि जब तक प्लांट छोटा है, like the algae, blue green algae है, right? जैसे मशरूम जैसा फंगस है, right? जैसे छोटे प्लांट है तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिस्टेंस छोटा है. छोटा सा प्लांट है तो डिस्टेंस इतना ही होगा, एंड देयरफॉर व्हाट हैपन? डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मतलब क्या? मोर कॉन्सेंट्रेशन से लेस कॉन्सेंट्रेशन की ओर बढ़ना, तो डिफ्यूजन हो जाएगा. वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर हियर इज टू डिफरेंट थिंग इज दैट व्हेन the gases transfer from large concentration to less concentration, more concentration to less concentration, higher concentration to lower concentration, जब गैस ट्रांसफर होती है that is called the diffusion. But more concentration to less concentration जब water या कोई liquid ट्रांसफर होता है that is called osmosis. That is the new concept.
हियर ऑस्मोसिस, जब आपने कभी ऐसा पढ़ा है कि अगर किशमिश होती है, द ड्राई ग्रेप्स, राइट, किशमिश, अगर आप वो किशमिश को पानी में रात को भिगो दें, काली द्राक्ष जिसे बोलते हैं, उसे पानी में भिगो दो, सुबह में क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगी, इट एब्जॉर्ब द वाटर। व्हाई? बिकॉज वो ड्राई है, उसके अंदर शुगरी कंटेंट है, शुगर है, ग्लूकोज है, तो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है और बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पर अंदर वो ड्राई है तो अंदर क्या होगा, शुगरी कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, राइट, अंडरस्टैंड। तो सॉरी, वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, तो जब आप रात भर उसे पानी में डालते हो तो वाटर मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, बाहर वाटर ज्यादा है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वो अंदर जाएगा और इसीलिए वो फूल जाएगी, राइट, स्वेलिंग हो जाएगा, राइट, बिकॉज वो एब्जॉर्ब द वाटर बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। उसी तरह अगर आप ग्रीन ग्रेप्स बाजार से लाते हैं, फ्रेश ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स है और ग्रीन ग्रेप्स को अगर आप पानी सॉल्ट वाटर में डाल दो, या तो शुगर कंसंट्रेटेड वाटर है, जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें आप डाल देंगे, व्हाट हैपन, जब शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो शुगर का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाना है, एक बाउल में पानी लिया, उसमें 5-6 टीस्पून शुगर डाल के फिर उसको मिक्स कर दो, शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। अब ग्रीन ग्रेप्स को अंदर रात भर रख दो, यू नो व्हाट हैपन, ग्रीन ग्रेप्स में शुगर कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर शुगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेप्स के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, क्योंकि वो शुगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो पानी कम, शुगर ज्यादा। अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया बाहर तो पानी ग्रेप्स में से बाहर आ जाएगा, तो जो वो ग्रेप्स है वो श्रिंक हो जाएगी, ग्रीन ग्रेप्स। दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। Water moves from higher concentration to lower concentration is called osmosis. Gas move from higher to lower is called diffusion. तो जब प्लांट की बॉडी स्मॉल है तब डिफ्यूजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वेदर ऑस्मोसिस वेदर डिफ्यूजन, गैसेस एंड वाटर एंड मिनरल्स ऑस्मोसिस से ही ट्रांसफर होते रहेंगे। बट जब लार्ज बॉडी है लाइक अ टॉल ट्रीज एंड प्लांट्स, then what happened, the osmosis and the diffusion rate is not enough for the transportation. तब ऐसी कोई सिस्टम होनी चाहिए जिससे वाटर और गैसेस या तो फूड मटेरियल्स वो एक्सेसिव ट्रांसफर हो, इनफ रेट से ट्रांसफर हो, और इसीलिए बॉडी के अंदर प्लांट में 2 ट्रांसपोर्टेशन ट्यूब्स है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में 2 tubes are there, that is called the xylem and phloem. Xylem carries the water and the dissolved material from root to the leaves, and leaves prepare the that glucose and food material from the photosynthesis, and that जो food material है it gives it to the whole body part till root by the phloem. So 2 tubes are present in the stem. एक है xylem and another is phloem. Xylem carries the water from root to leaf and phloem carries the food material from leaf to root. You understand that? So the transportation system in a tall plant contains 2 tube-like structure that is called xylem and phloem. So now we'll see in detail that how the xylem and phloem work, right? Okay. Okay. Now this is, we have discussed that the transportation in plants occur. So in that xylem and phloem, 2 type of tube is there. Okay. Now here plants do not move. That is locomotion नहीं होता plant में. You know what is locomotion? That is move from one place to another. So they do not locomote, and many cells are dead cells. You know that कि stem जो trunk of the trees होते हैं उसके ऊपर dead cells होते हैं, right? Dead cells do not use the energy or anything. So many have the dead cells are there, so need the less energy. The human body or the animals की comparison में plant need less energy.
राइट। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो एनर्जी के लिए ही वर्क करती है. If we need the more energy, we have to transport the more oxygen and all, right? And therefore, the plant needs less energy, so it use the relatively low transport system. हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो ब्लड पंपिंग होता है एंड ऑल, उसका रेट के हिसाब से प्लांट का जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट है, इट इज वेरी लो. इट इज अ स्मॉल सिस्टम एंड देयरफॉर लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है प्लांट में. देन प्लांट की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इट कंटेन्स द टू टाइप ऑफ ट्यूब दैट इज कॉल्ड द वेसल. जैसे हमारी बॉडी में arteries and veins are there. In the body of the plant, xylem and phloem, it contains the xylem and phloem is there. Here is the phloem is there. Now xylem transport the water and minerals from root to the leaves. You know that कि root जो absorb करता है वो कैसे करता है. तो here is the root. This is the structure of root and here is the cells present in that. ये जो है वो सेल है, रूट के सेल, right? This is all cell. Now here is the root hair and here is the stem. Okay. Now this is the structure of plant. Now here root hair और ये जो है वो क्या है, soil particles है. This is all soil particles. So root hair goes into the near in the intermolecular space of soil particles and that hair absorb the water and minerals. वो water absorb करके ये सेल को दे देता है. जो रूट के सरफेस के जो ऊपर के सेल है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये रूट सेल जो रूट हेयर्स है. रूट हेयर एब्जॉर्ब द वाटर एंड गिव इट टू दिस सेल. ये सेल को देगा. जब ये जो सेल है इसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, यहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन मोर ज्यादा हो गया, और ये जो सेल है इसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन लेस है, तो वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा. तो ये सेल में से यहाँ आएगा लाइक दिस. अब ये पूरे सारे सेल जब वाटर से फिल हो गए, वाटर से पूरे के पूरे सेल जब कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, मतलब कंप्लीटली फिल्ड हो गए, तब और भी पानी यहाँ से एब्जॉर्ब होगा. तो वो पानी धीरे 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 अब यहाँ जाएगा. दैट इज हियर इज द स्टेम सेल. तो यहाँ वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज मोर एंड हियर वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज लेस. तो यू नो दैट कि जैसे अगर पानी नीचे गिरा हुआ है सरफेस पर और आप स्पंज रखते हो या कोई क्लॉथ रखते हो, कुछ भी, तो जो स्पंज है वो क्या करेगा, पहले नीचे, फिर धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब होता 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 ऊपर जाएगा. दैट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस कैसे होता है, यहाँ कंप्लीटली फील्ड, तो नाउ वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज मोर इन द रूट सेल व्हाइल इट इज लेस इन द स्टेम सेल. तो मोर कॉन्सेंट्रेशन टू लेस कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, तो पानी फिर यहाँ गया. ये सारे सेल भर जाएंगे तो ऊपर, ये सारे भर जाएंगे तो ऊपर, ऐसे करके धीरे 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 वो कहाँ तक पहुंच जाएगा, लीफ तक. दैट मीन्स दिस इज हियर contains the here transport the product of photo. Xylem transport the water and minerals from the roots to the leaves, while phloem क्या करता है, transport the product of photosynthesis from leaves to the other part of the plant. तो वो नीचे से ऊपर जाना ही कठिन है. You know why? Because नीचे से ऊपर जब जाते हैं तब it is in the opposite direction of gravitation. उसे forcefully ले जाना पड़ता है. एंड देयरफॉर वो क्या करेगा, यहाँ ऑस्मोसिस से ऊपर ले जाएगा. पर जब लीफ से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट है वो रूट तक, वो तो ऐसे ही जाएगी बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रेविटेशन, राइट. ओके, सो दैट फोटोसिंथेसिस से जो भी प्रोडक्ट बनी है वो लीफ से रूट तक फ्लोएम ले जाएगी. नाउ जाइलम में क्या क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है ट्यूब का, तो इट कंटेन्स tissues, that is the group of the cells, vessels and tracheids, that is special type of cell of roots, stem and leaves.
तो these are the tissue, that is the group of cells, vessels, that is tube-like structure and tracheids होते हैं. और जो जाइलम है रूट, स्टेम एंड लीव्स को इंटरकनेक्ट करती है. एक स्टेम से रूट और रूट से लीव तक एक पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देती है. एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इंटरकनेक्टेड की होने की वजह से सॉइल से टेक्स अप द वाटर एंड मिनरल, डिसॉल्व इन इट बाय ऑस्मोसिस, इट ट्रांसफर द वाटर इन द जाइलम. जाइलम से वो पूरा यहां तक आ गया, फिर जाइलम से ट्यूब से ऊपर तक जाएगा ऑस्मोसिस से. सो जाइलम इंटरकनेक्टेड होती है रूट, स्टेम एंड लीफ तक. एक ट्यूब लाइक चैनल बना देती है जिसमें से रूट में से लीफ तक वाटर जा सके. यू नो व्हाट इज ऑस्मोसिस? दैट इज here water moves from higher concentration to lower concentration is called, this process is called osmosis. Gas moves from higher concentration to lower concentration is called diffusion, right? And water loss in form of water vapor through stomata is called transpiration. Transpiration, water evaporate होता है in the sunlight. This is the most important thing in the plant. जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज हो जाता है और एक्स्ट्रा जो वाटर है वो ट्रांसपीरेशन से बाहर वाटर वेपर में रिलीज हो जाता है इन द एनवायरनमेंट. इसीलिए यहाँ लीफ के सेल में वाटर कंटेंट कम हो जाता है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है. देयरफॉर वो यहाँ लीफ में कम हो गया तो नीचे से एब्जॉर्ब होगा, राइट? वो शक करेगा. इसीलिए जब ट्रांसपीरेशन रेट इज हायर, सो absorption of water is higher, provided that we have to give the water in the soil. अगर सॉइल ही हार्ड और ड्राई है तो प्लांट सूख जाएगा, बिकॉज ट्रांसपीरेशन तो होता ही है, फोटोसिंथेसिस होता ही है जिसमें वाटर यूज हो जाता है. तो जहां लीफ में वाटर यूज हो गया यहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, तो वो नीचे से ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड वाटर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए नीचे से ऊपर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. सो ट्रांसपीरेशन is responsible for the absorption of water in the xylem from root, and osmosis is responsible for the transfer of water to the leaf. You understand that? Okay. Transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals in the plant. अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होता तो वाटर को लॉस ही नहीं होता, तो वाटर इसी में रहता, तो बाकी के अलग फिर से वाटर ऊपर कैसे आता, राइट? जब हमारा पेट भरा है तो हम और खाना नहीं खाएंगे. वैसे ही जब स्टेम लीव्स के सेल में अगर ऑलरेडी वाटर है ही तो वो एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा. इसीलिए ट्रांसपीरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. यू अंडरस्टैंड दैट? अनदर थिंग इज the transport of soluble product of photosynthesis is called translocation. This is one mark question, very important. Another 3 definition is there: osmosis, transpiration and translocation. Now what is translocation? Translocation होता कहाँ है? फ्लोएम में. क्यों? क्योंकि जो फ्लोएम है वो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ट्रांसफर करता है फ्रॉम लीफ टू द होल पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड देयरफॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट of photosynthesis is called translocation. लीव्स से फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट को ऑल ओवर द पार्ट में ले जाने का जो काम है वो फ्लोएम करता है, तो फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन होता है. व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ऐसा 1 मार्क क्वेश्चन आता है, कीप इन माइंड. इट अकर्स इन द फ्लोएम. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट नॉट ओनली दैट ग्लूकोज एंड सुक्रोज कि जो फोटोसिंथेसिस में बनता है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड एंड सम अदर सब्सटेंस. और जो वो ट्रांसपोर्ट करता है वो कहाँ जाता है? तो स्टोरेज पार्ट. सपोज कि किसी प्लांट में स्टोरेज फ्रूट में होता है, किसी प्लांट में स्टोरेज सीड्स में होता है, किसी में रूट में होता है. तो जहां पे स्टोरेज करना है वहां पे ये सारा ले जाएगा फ्लोएम. सभी पार्ट को देगा पर जितना प्लांट को चाहिए.
एक्स्ट्रा जो है वो कहाँ जाता है, स्टोरेज होता है। तो वो स्टोरेज पार्ट तक कौन ले जाता है, फ्लोएम। फोटोसिंथेसिस से जो भी प्रोडक्ट बनती है उसमें से जितनी भी चाहिए उतनी प्लांट यूज करेगा तो वो पार्ट में ले जाएगा फ्लोएम, और जब बाकी की जो एक्स्ट्रा है वो भी फ्लोएम ही ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ तक, स्टोरेज पार्ट तक, और वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, राइट। दैट इज other substance and amino acid and the soluble product of photosynthesis is transferred from leaves to the whole body part by the phloem and it is called translocation. फ्लोएम ट्यूब का कौन कौन सा स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या होता है, तो दैट इज सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। सीव सेल्स आपने छन्नी देखी है, जो बच्चे बीच बीच में होल्स होते हैं जिससे हम ऐसे छाड़ने का काम करते हैं, वो दैट इज सीव सेल्स भी यहाँ फ्लोएम में ऐसे ही होते हैं। सीव सेल्स मतलब बीच बीच में होल्स वाली एक वॉल, और वो पूरे ग्रुप बना के सीव ट्यूब बना देती है। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब इज जस्ट लाइक दिस, ये ट्यूब है और बीच बीच में ऐसे होल्स वाले सीव सेल्स है, लाइक दिस इज होल्स, this is sieve cells and this is sieve tubes, और here is companion cells like this। companion cells मतलब ये क्या है, guard cells that helps in the phloem, function of the phloem। guard cells है, companion cells है जो help करते हैं, that is the structure of the phloem। डिटेल में नहीं है, you just keep in mind the function of the phloem, the definition of osmosis, translocation and transpiration, right? This is all about the transportation in plant, right? So here is the end of our session, end of today's session, that is the transportation in human beings and plants. Next time we'll move ahead with the concept that is excretion, right? Till then, goodbye.